Hello everyone, this is Priyanka. Welcome to online learning platform Math is A. Children, today we will solve some division problems using long division method, which is definitely going to help you. Let's start. In this video, division is explained using three different examples where each example will represent one case. As you can see on the screen, our first example shows the first case, that is when the first digit of dividend is less than the divisor. Means जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर से छोटी होगी या फिर ये कह लो कि कम होगी. अब डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, ये मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट. एंड आवर सेकेंड एग्जाम्पल शोज द सेकेंड केस, दैट इज व्हेन द फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवाइजर. मीन्स जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर के इक्वल होगी. एंड आवर थर्ड केस is represented by the third example, which shows how to divide the number when the first digit of dividend is greater than the divisor. Means जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर से बड़ी होगी. अब फर्स्ट केस क्या कहती है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आइए समझते हैं. Now we are going to solve this question using long division method. So we need to write this question in this format. Children, the number which has been written inside the line is known as dividend. इसे बोलते हैं dividend, right? Dividend. And the number which has been written outside the line is known as divisor. इसे क्या बोलोगे आप बेटा? Divisor, right? Means जो भी नंबर inside the line लिखा होगा उसको आप बोलोगे dividend, and the number which has been written outside the line is known as divisor, right? So now to solve this question we must be know the table of 8. Means आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 8 का टेबल पता होना चाहिए. So for our convenience we will write the table of 8. हम 8 की टेबल लिखेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, राइट. एंड वी विल स्टार्ट with 8 zeros are, right? So 8 zeros are 8 multiplied by 0 is equals to 0, right? And 8 ones are 8. 8 twos are what? 16. 8 threes are 24. 8 fours are 32. 8 fives are 40. 8 sixes are 48. 8 sevens are 56. 8 eights are 64. And 8 nines are, that is 72. Children, no need to write 8 tens are. आपको 8 tens are लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमें डिवाइड कैसे करना है. Here you can see that मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखवाया था, पहली केस क्या बताया था कि when the first digit of dividend, जब डिविडेंड की पहली डिजिट डिवाइजर से छोटी होगी, हमने यही एग्जाम्पल लिया था. मीन्स आप देख सकते हो कि 4 इज लेस देन 8. तो आप क्या करोगे, जब टेबल रीड करोगे देन यू विल रीड टिल टू 4 8 48, राइट. यू विल टेक 2 डिजिट. तो अब क्या करोगे, 8 की टेबल आप इतनी बार पढ़ोगे कि यू विल गेट 48. या तो आपको 48 मिल जाए, 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो आइए देखते हैं. 8 6 are 48. Then you will write 6 here. 8 6 are 48.
और आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 8 में से 8 माइनस करोगे यू विल गेट 0, एंड 4 में से 4 माइनस करोगे यू विल गेट 0, राइट, मीन्स नथिंग, कुछ नहीं मिला आपको. देन यू विल नोट डाउन 2 हियर. अभी आपने डिविडेंड के रिमेनिंग पार्ट को, वन रिमेनिंग पार्ट को आपने नोट कर लिया, दैट इज 2, राइट. अब फिर आप देख रहे हो कि जब आपने डिविडेंड के सेकेंड रिमेनिंग पार्ट को नोट किया तो आप क्या देखते हो, फिर यहाँ पे 2 इज लेसर देन 8, राइट. तो अभी क्या करना है कि 8 की टेबल आप इतनी बार रीड करोगे कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो देखो बेटा 2 से ज्यादा, बिकॉज 8 ones are you will get 8, right. So 8 zeros are 0. So you will write here 0, and 8 zeros are 0. Then subtract it. 2 minus 0, 2, right? And next write down the next part of dividend, that is 4. अभी क्या करोगे आप कि फिर 8 की टेबल आप इतने टाइम रीड करोगे कि 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो देखते हैं, 8 3s are 24. Then you will write 3 here. 8 3s are 24, and then subtract it. 4 minus 4, 0 means nothing. 2 minus 2, 0 means nothing, right? तो अभी आप क्या देखते हो कि you will get 603, that is quotient. इसे क्या बोलते हो आप? quotient. क्या बोलते हो इसे? quotient. And this is remainder. This is remainder, right? This is remainder. फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, the number which has to be written inside the line is known as dividend. The number which has been written outside the line is known as divisor. And this number is known as quotient, and the remaining part is known as remainder. आप इसे लिखोगे कैसे? लिखोगे 4824 means 4824 is divided by 8. Then we will get 603, and remainder will be 0, right? So this is the format of division. या ये कह लो कि फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताई थी कि when the first digit of dividend is lesser than the divisor. जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर से छोटी होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, राइट. आइए सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं. सो चिल्ड्रेन मूव टू द सेकेंड केस. क्या थी सेकेंड केस, एक बार हम फिर से देख लेते हैं. मैंने आपको कहा था कि सेकेंड केस में व्हेन द फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर के इक्वल होगी. आप देखो यहाँ पे 5 और 5 इक्वल है, राइट. बेटा मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, द नंबर विच हैज टू बी रिटन इनसाइड द लाइन is known as dividend, and the number which has to be written outside the line is known as divisor. और हम यहाँ पे सेकेंड केस को सॉल्व करने के लिए आए हैं. सेकेंड केस हमारी है when the first digit of dividend is equal to the divisor. जब dividend की first digit divisor के equal होगी तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. मीन्स 5 is equals to 5 यहाँ पे दे रखा है, राइट. सो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था बेटा कि अपनी कन्वीनियंस के लिए कि आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और फास्टर वे में सॉल्व कर सको, यू हैव टू राइट द टेबल that of the digit that has been mentioned on the divisor section, right? So 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, right? अभी आते देखते हैं क्या करोगे. अब आप 5 के टेबल रीड करोगे. 5 के टेबल कितनी बार रीड करोगे कि आपको 5 मिल जाए, राइट. हम केवल फर्स्ट डिजिट को कंसीडर करेंगे. कब? जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर के इक्वल होगी, तब आप केवल 1 डिजिट लेकर के कंटिन्यू करोगे, राइट. सो देखते हैं 5 कहां से आएगा. तो 5 ones are 5. यू विल राइट 1 here. 5 ones are 5. So 5 minus 5, you will get 0, means nothing, right. Then you will note down the remaining one part of dividend, that is 3, right.
अभी क्या देखते हो आप, फिर सेम प्रोसेस है कि 5 की टेबल आप इतनी बार पढ़ोगे कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो आप 5 की टेबल देखो क्या होगा, 5 zeros are 0, हम कितने टाइम्स लेंगे, 0 टाइम्स, देन यू विल राइट 0 हियर, सो 5 zeros are 0, राइट, and 3 minus 0 that is 3, right, then you will note down 1 here। अब क्या करोगे आप कि 5 की टेबल आप इतनी बार पढ़ोगे कि 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा 30, राइट, अभी तो ठीक है, लेकिन 5 7 जा 35 ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप, 5 6 जा 30, then you will write 6 here, 30, right, and subtract it। नेक्स्ट स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यू विल नोट हियर 0, राइट। अब क्या करोगे आप, आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, ये चीज हमेशा याद रखना। फिर अब आप 5 की टेबल इतनी बार पढ़ोगे कि या तो 10 आ जाए, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 2 जा 10, you will write 2 here, 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 minus 0 nothing, that is 0, and 1 minus 1 0 means nothing, right। so फिर मैंने आपको बताया था आप इसे कैसे लिखोगे, when 5310 divided by 5 the quotient will be, इसे quotient बोलते हैं, the quotient will be 1062, right, and what will be the remainder, remainder will be 0, remainder means क्या बचा, कुछ बचा आपके पास, नहीं कुछ नहीं बचा, then the remainder will be 0, right। अभी आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस मैंने आपको क्या बताई थी, देखते हैं और उसके क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। थर्ड केस हमारी थी, तो थर्ड केस समझने से पहले फिर हम इसे फॉर्मेट में लिखते हैं, डिवीजन के फॉर्मेट में, 7 8 0 2। क्या बताया था मैंने आपको थर्ड केस, थर्ड केस के लिए मैंने आपसे कहा था बेटा, व्हेन द फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर से ज्यादा होगी, जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर से ज्यादा होगी, तब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखते हैं। जब डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट डिवाइजर से ज्यादा होगी, तब आप केवल सिंगल डिजिट को कंसीडर करके चलोगे। आइए देखते हैं, मीन 6 की टेबल आपको इतनी बार रीड करनी है कि 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, 6 0 जा 0 काफी कम है, 6 1 जा 6 ठीक है, 6 2 जा 12, 12 ज्यादा हो गया बेटा, तो कितने टाइम्स लोगे, यू विल टेक ओनली 1 टाइम, 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट करिए, 7 minus 6 you will get 1, right, then you will note down the one remaining part of dividend, that is 8। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसेस है, टेबल रीड करो, 6 की टेबल आप इतनी बार रीड करोगे, 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपको 18 मिल जाता है देन वेल एंड गुड। आइए देखते हैं, देन यू विल गेट 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 8 minus 8 you will get 0 means nothing, 1 minus 1 0 means nothing, right, then you will note down the remaining part, that is 0। अभी क्या करोगे आप, फिर वही चीज है, बिकॉज ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अभी आपसे क्या कहता है, सेम प्रोसेस कि 6 की टेबल आप इतनी बार रीड करो, देन यू विल गेट 0। तो मैं कितनी बार रीड करूंगी, 0 टाइम्स 6 zeros are 0, and 0 minus 0 means nothing, कुछ नहीं, you will write 0, right। नेक्स्ट स्टेप में क्या नोट करोगे, यू विल राइट डाउन 2, राइट। फिर सेम प्रोसेस, 6 की टेबल आप इतनी बार रीड करोगे कि आपको 2 मिल जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो 6 की टेबल रीड करोगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा, तो 2 से कम होना चाहिए, दैट विल बी 0 टाइम्स, सो 6 zeros are 0, then 2 minus 0 what will you get, you will get 2,
मीन्स किसी भी सिचुएशन में अब 2 नहीं आ सकता, राइट? देन बेटा 2 विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 2। क्या प्रोसेस है लिखने का, मैंने आपको बताया था, व्हेन 7802 divided by 6, then you will get remainder as 1300 and remainder will be 2, right? So आपको ये तीनों केसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं कि इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और आप अपने आंसर्स को कैसे चेक करते हो। Now here are some points to keep in your mind while solving the division problems. Children, first is you must know or able to create the table of given divisor. Tables from 2 to 20 must be on your tip for faster calculation. Means आपको या तो 2 से 20 तक टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए या फिर आप इतने केपेबल हो कि आप डिवाइजर में जो भी डिजिट दे रखी है उसका टेबल क्रिएट कर सको, राइट? जैसा कि मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था। अगर आप इतने केपेबल हो तभी आप क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? और एक चीज याद रखना, मैथ्स का मजा तभी है जब आप क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लेते हो। द सेकेंड इज स्टार्ट द टेबल फ्रॉम zeros are term instead of ones are, as it will help you to solve those questions which have 0 in dividend or 0 in quotient part, right? And the third is each digit of dividend is part of your question. डिविडेंड की हर एक डिजिट क्वेश्चन का पार्ट है एंड क्वेश्चन नीडेड टू बी सॉल्व्ड। मीन्स अगर 0 भी लिख रखा है डिविडेंड में तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, राइट? सो चिल्ड्रन, एट लास्ट, हाउ कैन वी चेक आवर आंसर आफ्टर डिवाइडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ डिविडेंड पार्ट? मीन्स हम ये कैसे चेक करेंगे अपना आंसर कि हमने राइट किया है या रॉन्ग? So you can check your answer by using this formula that has been mentioned on the screen. Dividend is equals to quotient multiplied by divisor plus remainder, right? Means अगर आपको चेक करना है कि आपने राइट किया है या रॉन्ग तो आप कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करना। आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसमें आप रिमाइंडर को ऐड कर देना। रिमाइंडर कुछ भी हो, 0 हो, नंबर हो, कुछ भी हो, आप उसको ऐड कर देना। अगर आपको डिविडेंड मिल जाता है इट मीन्स आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया है, राइट? सो एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने क्या लिया था, 7802 is divided by 6। जब 7802 को आपने 6 से डिवाइड किया था, at that time you will get 1300 as a quotient। आपको 1300 या ये कह लो 1300 आपको quotient मिला था और रिमाइंडर कितना मिला था, that is 2। अब कैसे चेक करोगे आप? देखो क्या लिख रखा है मैंने फॉर्मूला यहाँ पे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू quotient मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या लिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप, इज इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पे आंसर चेक लिख रखा है मैंने लिख दिया है 7802 जो कि डिविडेंड दे रखा है, राइट? इज इक्वल्स टू कोशेंट कितना हमारा आया था 1300 लिख रखा है मैंने, मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर कितना है, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा, रिमाइंडर इज 2। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करना। तो जब आपने 1300 में 6 का मल्टीप्लाई किया देन यू विल गेट 7800, राइट? देन प्लस 2 एंड यू विल गेट 7802। सो इफ आफ्टर चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड तो आप ये कह सकते हो माई आंसर इज करेक्ट। मीन्स जब आपने आंसर को चेक किया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आप ये कह सकते हो कि मेरा आंसर करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
आप क्या करना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस और लिखना, अपने घर वालों को बोलना, पेरेंट्स को बोलना कि मम्मा पापा मेरे को ऐसे क्वेश्चंस दो, मैं प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी, राइट? So thank you class, thank you for watching this video, thank you so much.